Yes, good evening, everyone. This is Bushra Uwais Patel, this side. Okay, Susmita's classes was established in 2020. We have trained almost more than 100 students. We have both online course also, and we also have offline courses. Offline courses are conducted in Hadapsar, and online courses also we have many experienced teachers with us, and we concentrate on to three basic aspects, that is listening, reading, and writing process. Why listening? Because listening is the one where we can listen, and then we can uh, implement whatever we are listening. Okay, so that's what I can tell about. Thank you. Yes, sir, you can. Okay. Thank you for the introduction, Bushra ma'am. So, good evening, everyone. Yeah. I am Pritesh Patil. I am the tutor in Susmita's classes. I have been in Susmita's classes for last 3 years. I have more than 3 years of experience in teaching spoken English come business English, as well as I have experience in corporate training and soft skills. I have completed my graduation in BE Civil from Imperial College of Engineering and Research, Wagholi, Pune. I have also done I have also done my full stack web development course from Masai Institute, and I'm currently pursuing advanced diploma in teaching English to the speakers of foreign language from ICTT, which is a UK based institute. Okay. As for my hobbies, I like to play, I like to read, I like to write. And as for my achievements, I'm a co-author of a book titled The Road. So that's all for my introduction. We will start with the demo. Okay. So first, is my screen visible? Hello. Yes. Okay. Thank you. Now, so we will start with basics. Okay. So we will start with how to form sentences, what sentences are, and I'll give you an overview of our course कि exactly course में क्या क्या हम cover करते हैं, क्या क्या नहीं cover करते हैं, and we will keep the session in English and Hindi, mostly Hindi, since of course you guys, some guys, like some people won't be familiar with English. बहुत लोगों को English नहीं समझ में आएगा अगर पूरा English में रखा तो. So Hindi and English we will be keeping it in both the languages. Okay. Now, so first we always have a conversation. Where are you from? So I'll play the audio to this conversation. Everyone listen carefully. Okay. Unit 1. Please call me Beth. Page 2, Exercise 1, Conversation. Where are you from? Listen and practice. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sun Hee is here. Who's Sun Hee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? Garza. Okay. Now, see, in this conversation, there was a point when she forgot how to pronounce the name or what is the pronunciation of his name or last name. Okay. So in that, it was Garcia. Okay. She said, is it Garcia? But it was David Garza. So she asked, how do you spell your last name? So why did she ask that? Because अगर last name का spelling पता होता है तो you can guess the pronunciation. ओके. सो अगर आपको किसी का नेम कैसे प्रोनाउंस करना है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज आस्क
कि हाउ डू यू स्पेल योर लास्ट नेम, हाउ डू यू स्पेल योर फर्स्ट नेम, हाउ डू यू स्पेल योर मिडिल नेम. ओके, तो देन यू विल से इट इज GARZA. उससे आपको प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा. सेकेंड थिंग कब काम में आता है, सपोज यू आर फिलिंग अ फॉर्म फॉर समवन, आप किसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, वहां पे आपको उनका नाम लिखना है. ओके, just give me a minute, someone is on yeah. Okay, so आपको किसी के लिए फॉर्म फिल करना है, सपोज उनका नाम गीता है. अभी इंडिया में लोग डबल, कुछ लोग डबल ही लगाते हैं, कुछ लोग आई लगाते हैं. तो अभी आप तब ये काम में आ जाएगा, आप पूछ सकते हो हाउ डू यू स्पेल योर फर्स्ट नेम, तो वो पर्सन बोलेगा इट इज GEETA और इट इज GITA. ओके, नाउ नेक्स्ट we have some speaking exercises which we do in our class. Then we have grammar exercises. Okay, just a minute. Yeah, so we have grammar exercises. So in this session or in this demo session हम basic grammar देखेंगे कि sentences कैसे बनाने हैं, sentences क्या होते हैं, कितने types of sentences होते हैं. Okay, so there are always 3 types of sentences. पहला होता है positive statement, दूसरा होता है निगेटिव, एंड थर्ड वन इज इंटरोगेटिव. ओके, इंटरोगेटिव के 2 होते हैं, WH क्वेश्चंस एंड यस नो क्वेश्चंस. उनको हम ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम पुणे. आप आपका पूरा एड्रेस दे सकते हो, नहीं तो आप सिंपली बोल सकते हो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, मुझे नहीं बताना है. सो मैंने WH से क्वेश्चन पूछा था वेयर आर यू फ्रॉम, बहुत सारे ऑप्शंस थे. बट अगर मैंने पूछा आर यू फ्री टुमारो, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आप बोलोगे यस आई एम फ्री, नो आई एम नॉट. ओके, तो जब बेसिकली सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं यस एंड नो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड. एंड WH क्वेश्चन के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, सो उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड. ऐसे 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं. ना प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं. सो एक सिनारियो है, कभी भी हम अगर कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो मोस्टली वो 3 पर्सन में करते हैं, हम थर्ड पर्सन में कॉन्वर्सेशन करते हैं. सो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है एंड थर्ड पर्सन होता है. सो अभी मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ऑफकोर्स आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, बात यू आर नॉट टॉकिंग बैक, एंड हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो जो बात कर रहा होता है, जो स्पीकर होता है, इट वुड बी फर्स्ट पर्सन. उसमें हम प्रोनाउंस यूज करते हैं आई एंड वी. ओके, जिसके जो सुन रहा होता है लिसनर, वो होता है सेकंड पर्सन, उसका प्रोनाउन यूज हम करते हैं यू. एंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन. उसमें अगर एक ही पर्सन हो तो हम ही, शी, इट, नहीं तो वो पर्सन का नाम यूज कर सकते हैं. और अगर ज्यादा हो तो दे, नहीं तो ज्यादा लोगों का नाम. ओके, सो ऐसे 3 होते हैं. आफ्टर दैट वी कंप्लीट द टेंसेस. टेंसेस होंगे आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट्स विद बी है. सो हम जो बोलते हैं कि मैं पुणे से हूँ, मैं वो लड़का होशियार है, वो लड़की सुंदर है, हम रहने वाले जो सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स विद बी. सो बी का मतलब क्या है, होना, नहीं तो रहना. ओके, सो प्रेजेंट में उसके फॉर्म्स होते हैं एम, इज, आर. ओके, तो वो कैसे यूज करना है वी विल लुक एट. देन उसके स्ट्रक्चर क्या होता है. अभी आपको ये तो पता है कि सेंटेंस कब यूज करना है, बट कैसे बनाना है वो भी पता होना चाहिए. नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, अभी सेंटेंस है स्टेटमेंट विद भी, अगर आपको बोलना है आई एम फ्रॉम पुणे, नहीं तो ही इज फ्रॉम द US. अभी उसने अगर आप उसमें अगर आपने डाल दिया कि आई एम प्ले क्रिकेट, तो ये ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि एम, इज, आर एंड वर्ब का नॉर्मल फॉर्म आप एक ही सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हो. ओके, नहीं तो बहुत लोगों को आपने सुना होगा, नहीं तो आपकी भी आदत होगी, ING हम बहुत लगाते हैं बोलते समय, इंग्लिश बोलते समय, राइट. सो दैट इज रॉन्ग. हर जगह पे ING लगाना, हर बार ING बोलना भी रॉन्ग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि मैंने सुबह खाना खाया, तो कुछ लोग बोलते हैं आई ईटिंग फूड इन द मॉर्निंग. सो दैट इज रॉन्ग. वो पास्ट टेंस में था, फिर भी हम क्या लगा रहे हैं, ING लगा रहे हैं. तो वो कैसे कॉमन एरर्स निकालने, इनको क्या बोलते हैं हम, कॉमन एरर्स. हमें पता तो होता है कि हमें कौन से टेंस में बोलना है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि कैसे बोलना है, कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है. तो ये कॉमन एरर्स निकालने में हम मदद करते हैं. ओके, नाउ यू गाइस सॉ एन वीडियो. पहले एक वीडियो प्ले हो गया था,
For example, I'll show you again. Okay, so ये एक वीडियो है, etiquettes rules everyone must know. So अभी हम नॉर्मल इंग्लिश नहीं देख रहे, वी आर लुकिंग एट बिजनेस इंग्लिश, राइट? सो बिजनेस में कैसे बिहेव करना है, कैसे कॉमन, क्या कॉमन एटिकेट्स है, आप बिजनेस सेटिंग में हो, फॉर्मल सेटिंग में, फॉर्मल सेटिंग बोलते हैं उसको, आप इनफॉर्मल सेटिंग में हो, दोस्तों के साथ हो, तो कैसे कौन सा इंग्लिश यूज करना है, कौन से वर्ड्स आपको यूज करना है, कहाँ पे रिस्पेक्ट देना है, कहाँ पे आप अभी आपको पार्टी में हो हैंडशेक करना है, अगर ऑफिस की पार्टी हो तो कौन हैंडशेक ऑफर करेगा, लड़की करेगी या लड़का करेगा, नहीं तो बॉस करेगा या उसका कलीग कॉलिग करेगा, कौन ऑफर करेगा, ये सब चीजें। इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो प्रिपेयर कैसे करना है, इंटरव्यू में ड्रेसअप कैसे करना है, आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये सब हम बिजनेस इंग्लिश में कवर करते हैं। सो बेसिक ग्रामर तो हमारा कवर हो रहा है, स्पीकिंग तो हमारा इंप्रूव हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं हमारे, बट आपको मोस्ट ऑफ द लोग, आप मोस्ट ऑफ आप में से जो लोग हैं मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, और जो बाकी के हैं वो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, उनको अपस्किलिंग चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, राइट? सो उसके लिए कैसे क्या मेहनत हम कर सकते हैं, क्या हम खुद में चेंजेस कर सकते हैं, वो हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होता है कि हम गुड इवनिंग कब कितने बजे तक बोल सकते हैं। ओके, सो गुड इवनिंग हम रात के 12 बजे तक कभी भी बोल सकते हैं अगर हम किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो। ओके, सो ऐसे कुछ कुछ जो बहुत एकदम छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें पता नहीं होती है, नहीं तो पता भी होती है तो भी हम गलत यूज करते हैं, तो इनको हम कॉमन एरर्स बोलते हैं, वो भी हम निकालने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, ना कोर्स में कॉन्वर्सेशंस होंगे। ओके, बिकॉज क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ मुझे सिर्फ ग्रामर सीखना है, नहीं तो मुझे सिर्फ स्पीकिंग करना है। बट अगर आपको स्पीकिंग करना है तो आपको सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ में आना चाहिए, तो उसमें लिसनिंग काम में आता है। क्योंकि बहुत आपका भी होगा कि आप फॉर एग्जांपल फॉरेन में जाना है आपको, तो आप इसलिए सीख रहे हो, तो वहां पे आपको इंडियन एक्सेंट वाले लोग नहीं मिलने वाले, राइट? नहीं तो आपकी ही कंपनी का मैनेजर अगर बाहर से होगा तो उसका एक्सेंट इंडियन एक्सेंट नहीं होगा। सो हम ऐसे वीडियोस प्ले करते हैं, ऐसे ऑडियोस प्ले करते हैं जहां पे आपको अलग अलग एक्सेंट्स के लोगों का सुनाई देगा, उससे आपको प्रैक्टिस होगी कि हर एक एक्सेंट में आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। ओके, एक्सेंट हम न्यूट्रल रखते हैं, एक्सेंट हम नहीं सिखाते, एक्सेंट न्यूट्रल रहेगा, बट सामने वाला कौन सी भी एक्सेंट बोले तो आपको समझ में आना चाहिए। सो लिसनिंग अगर नहीं है आपको तो स्पीकिंग नहीं आएगा ऑफ कोर्स, और स्पीकिंग नहीं है तो लिसनिंग नहीं आएगा। रीडिंग एंड राइटिंग भी सेम है, अगर आपको सपोज मेल आया है, वो मेल आपको समझ नहीं रहा है, तो आप राइट कैसे करोगे, रिप्लाई कैसे राइट करोगे, राइट? सो ये सब जो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग है वो इंटरकनेक्टेड होता है। तो हम सिर्फ ग्रामर या स्पीकिंग पे फोकस नहीं करते, हम चारों एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स हमारा मेन फोकस होगा कि स्पीकिंग, बट उसके लिए जो बेसिक नीड्स है वो भी हम कवर करते हैं। ओके, सो आफ्टर द ग्रामर फोकस आपका वापस एक्सरसाइजेस होते हैं, देन उसके बाद यू हैव सम अदर कॉन्वर्सेशंस, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ग्रीटिंग्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हैंडशेक है, किस ऑन द चीक है, तो कौन से कंट्री में कौन से ग्रीटिंग्स कॉमन है। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या ग्रीटिंग कॉमन है, वी क्लास्प आवर हैंड्स टुगेदर, हम हाथ जोड़ते हैं, वी बाव अ लिटल, हम थोड़ा झुकते हैं, एंड वी से नमस्ते, दैट इज द कॉमन ग्रीटिंग इन इंडिया। वैसे यूएस में मोस्टली कॉमन क्या है, हैंडशेक। तो ये भी क्या किस में काउंट होता है, कॉमन एटिकेट्स, बेसिक एटिकेट्स में ये काउंट होता है। देन वी हैव कॉन्वर्सेशंस, कॉन्वर्सेशंस हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी ये कॉन्वर्सेशंस आप सिर्फ सुनोगे नहीं, इन क्लास यू विल, so for example I will say, suppose Rupali will be Sunny and Bushra will be Devi, so these guys will have the conversation, so आप वो लोग हो ऐसे समझ के you will have the conversation. Then we have different kinds of role plays. For example मैंने अभी आपको statements with be सिखाया, okay? नहीं तो politely request कैसे करना है किसी को वो सिखाया। तो उसके बाद मैं एक आपको सिनारियो दूंगा कि आप रेस्टोरेंट में गए हो, one person is the server and one person is the customer. सो कस्टमर ऑर्डर कैसे करेगा, सर्वर ऑर्डर कैसे रिसीव करेगा, ये रोल प्लेस होते हैं अलग अलग चीजों के। और आप इंटरव्यू में गए हो तो किसी का इंटरव्यू कैसे लेना है और इंटरव्यू कैसे देना है। सो हर एक ग्रामर पॉइंट के बाद वी हैव रोल प्लेस एंड कॉन्वर्सेशंस टू डायरेक्टली इम्प्लीमेंट इट राइट अवे। ओके, सो ऐसे नहीं कि अभी आज सीखा है तो कल जाके हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, वी प्रैक्टिस इट राइट अवे। ओके,
ऐसे होता है. सो देन अगेन वी हैव वर्ड पावर. हेलो कब बोलना है, गुड बाय कब बोलना है, हेलो के ग्रीटिंग्स कौन से, गुड बाय के ग्रीटिंग्स कौन से. देन लिसनिंग टास्क होता है. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, राइटिंग एंड रीडिंग टास्क भी होता है. सो फर्स्ट यूनिट में राइटिंग टास्क तो नहीं है, बट रीडिंग टास्क है, व्हाट्स इन अ नेम. सो आप रीड करोगे, इसके ऊपर से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो दैट इज हाउ आवर कोर्स वर्क्स. ओके, you will have conversations, you will have role plays, you will have grammar part, you will have exercises, and you will have reading, writing, and listening tasks. Okay, so this was the basic. क्या बोलते हैं, ये बेसिक था आपका कि ऐसे कोर्स होगा. अभी डिपेंड करता है कि विच लेवल आर यू ऑप्टिंग फॉर, उसके हिसाब से आपका ग्रामर चेंज होता है एंड उसके हिसाब से आपका कोर्स चेंज होगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर मी. नाउ if you guys have any questions regarding this, you can ask me. Unmute करके आप पूछ सकते हो. Sir, please show those worksheets and notes as well, please. Yes, okay, just a minute. Yes, so basically, see, you will have access to the worksheet, school book, of course. जो हम सीख रहे हैं उसका PDF आपको होगा. ये सब हम सीख रहे हैं, उसके नीचे आपको वर्कबुक होगा. हर एक यूनिट के बाद आपको वर्कबुक सॉल्व करना होता है कि इंट्रोड्यूस कैसे करना है खुद को, दूसरों को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, वो सब चीजें इसमें होती है. आफ्टर दैट वोकैबुलरी शीट होता है. वोकैबुलरी शीट में आपको आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए शीट्स होते हैं. अभी आपको पता है सेंटेंस कैसे बनाना है, बट सेंटेंस में एग्जैक्टली वर्ड्स ही अगर आपको पता नहीं नए नए कि यूज क्या करना है, तो फायदा नहीं है. सो वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है. वो यूनिट के बाद आपको होमवर्क होता है, वो आप कर सकते हो. अदरवाइज आपको हैंड रिटन नोट्स का एक्सेस है. ओके, हैंड रिटन नोट्स आप एक्सेस कर सकते हो. Sir, not that. The other one. Yeah, you can access these notes as well. Okay, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वीडियोस हमने इम्प्लीमेंट किए हैं. आप ये इन पे क्लिक करके एक्स्ट्रा, सो हेलो एंड गुड बाय इंग्लिश में कैसे बोलना है वो फ्रेजेस आप कर सकते हो. ओके, सो ये सब नोट्स के एक्सेस आपको होते हैं. हर एक यूनिट के लिए हमने स्पेसिफाइड खुद से नोट्स बनाए, वो भी आप रेफर कर सकते हो. क्लास में तो नोट्स हम निकालते ही, तो वो नोट्स को भी आप रेफर कर सकते हो. ओके, यस, एनीथिंग लेफ्ट फ्रॉम माय साइड मैम? No, not as such. Okay, so guys, if you have any question, if any one of you have any question regarding the course, regarding anything, you can ask me. You can unmute and you can ask. Am I audible to you guys? Yes ma'am, you are audible. Yes, yes, Okay. ma'am. So these are the details as ma'am told at the start. Our institute is located in Aminora Parktown. Okay, Hadapsar mein hai. So it's located in Aminora Parktown, and ma'am already told, Bushra ma'am already introduced the class that we started taking classes in 2020, and we have trained more than 100 students. We do corporate training. We do one-to-one. 1 minute, okay? We do one-to-one training, and we also take batches. Okay, we take it in offline as well as online mode, and we mainly focus on conversation skills, not only on the basis of grammar, but we try to cover these grammar topics on the basis of a conversation. ओके क्योंकि मैं आपको ऐसे ही सिखा सकती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करना है, बट अगर मैं कॉन्वर्जेशन में बिठा के उसको सिखाती हूँ तो आपको समझने में बेटर हो जाता है कि वो कब यूज करना है, राइट? And as sir explained it before, we practice more on communication skills along with listening, reading, writing. Why? Because आप अगर कोई भी कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशंस देखते हो ना, या फिर कोई भी इंग्लिश छोड़ के भी अगर आप कोई भी लैंग्वेज के एग्जामिनेशंस देखते हो, जैसे कि जापानीज है, कोरियन है, इवन संस्कृत है, तो वो सारे चारों एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पे फोकस करते हैं. आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि सिर्फ आप स्पीकिंग का एग्जाम दो या फिर आप सिर्फ कोई राइटिंग का एग्जाम दो. नहीं, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल 4 स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग अलोंग विद वोकैबुलरी. Okay, so हमारा कोर्स वैसे ही डेवलप किया हुआ है. So we specialize in teaching all age groups, and we specialize in teaching Indian as well as international. Okay.
Other than that, yes, why we focus on spoken cum business English course. We why we do that is business English हम अगर आपको सिर्फ सिखाएंगे तो उसका जो level रहता है वो high रहता है. Okay, now if you know how these levels are decided according to CEFR level, that is Common European Framework of Reference for Languages. तो आप अगर कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज अगर पढ़ते हो ना तो उसमें 6 लेवल्स रहते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2. तो बिजनेस इंग्लिश का जो करिकुलम स्टार्ट होता है वो B1 लेवल से स्टार्ट होता है. ओके, बट हमारा जो पोर्शन है वहां पर हम A2 लेवल से स्टार्ट करते हैं. अब आप ये सोचोगे कि या फिर ये पूछोगे मुझे कि A1 लेवल हम क्यों स्किप करते हैं. तो A1 लेवल जो इंग्लिश इंडिया में सबको आता है, उसमें क्या रहता है, हमारे बेसिक वर्ड्स की टेबल को टेबल बोलते हैं, लैपटॉप को लैपटॉप बोलते हैं, जो हम हमारे हिंदी में या फिर मराठी में भी यूज करते हैं. ओके, सो इसीलिए हम A1 लेवल स्किप करते हैं और हम A2 लेवल से स्टार्ट करते हैं, which is important for having a conversation. Okay, so that's how we focus on, and whatever curriculum is designed, it is designed on the basis of Cambridge University study material and Cambridge University's examinations like BEC, PET, Business English certificate, PET करके preliminary English test करके आता है और IELTS exam भी आता है वैसे करके. Okay, other than that, sir already explained, we focus on conversation practice, we focus on grammar, we focus on pronunciations, we focus on accent neutralization. जैसे sir ने बोला, हम कोई भी एक accent पे focus नहीं करते हैं कि आपको British accent आना चाहिए या फिर American accent आना चाहिए. नहीं, we focus on accent neutralization. So now when I speak in English, you don't understand from where I belong, right? So that is called neutral accent. Okay, कि mother tongue influence ना रहे, नेटिव लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस ना रहे और हमारा एक्सेंट जो है वो न्यूट्रल रहे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी फोकस ऑन. आफ्टर दैट वी आल्सो फोकस ऑन वोकैबुलरी. वी डेली हैव डिस्कशंस इन क्लास एंड वी डू लिसनिंग एंड writing reading task as well, along with soft skills, which helps you prepare for job interviews, to have familiar conversations in say work settings along with your colleague, like common etiquette jo hame pata hone chahiye, and to develop your overall personality. Okay, so these are the advantages of joining our classes. Now in our classes, we do not have more than 5 students in any batch, online as well as offline classes, and our classes are mostly interactive. Okay, so the having a small batch size gives us that opportunity to have a personalized attention on each and every student. Okay, so that is another plus point of joining our class. Other than that, yes, as I told you, it has real life or real world relevance because we mainly focus on conversations and we mainly focus on the grammar which is needed in having a conversation. Okay, and it boosts your confidence as well because you are practicing conversations in daily life and as well as in the class. And yeah, so the curriculum is mostly designed by me, which has been adapted for the Indian audience. Most of my tutors are globally certified. Even I am globally certified. Even I have done my master's in TESOL, that is Masters in Teaching English because of other language. And I'm also Cambridge Certified Speaking Examiner. I have done my MBA in IT and I'm currently working in an MNC as a soft skills trainer. Okay. And all my other trainers are also certified from the same institute that I am. And of course, we have taught many students before this. They are well established in their career now, and they're working in a lot of MNCs. And we have also trained working professional CEOs of the company. And as I told you, we have worked along with a lot of corporates as well. Okay. Yeah, these are some of the reviews of our previous students. They're available on the Google as well as on our website. Okay, and that's about me and that's about our Pritesh sir. Yes, now if you have any questions, you can ask us. मैम मैं कल ऑफिस में आ सकता हूँ क्या आपके? Yes, tomorrow you can visit anytime between, I guess, 11 to 5. 11 to 5, 6. आप रहते ना वहाँ पे 11 to 5? मैं नहीं, मैं इंस्टीट्यूट में नहीं रहती हूँ. सलोनी करके रहेगी. She is the admission counselor. Okay. If you want to have an interaction with me anytime, you can connect with me on personal call. Otherwise, you can book an appointment. Okay. Offline नहीं, virtually meet कर सकते हैं. I don't come down. आपका ओके, आप कौन सा नंबर है, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला आपका? Second वाला. This one. Okay. Okay.
I'll stop sharing the screen now. Okay. So our new batches are starting from Monday. Sorry, Tuesday. One batch is starting from Monday, that is 8 p.m. Online batch is starting from Monday. Our 9 a.m. batch Sorry is to starting from. interrupt, ma'am. Just the Yes. meeting will end. Rejoin with the same link. Yes. Please rejoin everyone. You can continue, ma'am. Let everyone rejoin, then I'll continue. Yeah. Okay, sure.